Hello my dear students and welcome to my channel. This video is for standard 10 students. Subject is physics, chapter number 2, work energy power, and this is lecture 6. In my previous lecture, I have discussed on the topic that when a body falls freely under gravity, then at any point of time during its fall, at any point of time, what will be the value of total energy in the ball? Yes, the total energy at any point of time during its free fall will be equal to mgh. This we have derived in my previous lecture. So please ensure that you have watched all the previous lectures for this chapter and then you come to lecture number 6. Okay, otherwise you will not understand anything. So let's revise whatever we have covered in the previous lecture in a very short. Let us revise. Suppose this is the ground and a ball is over here. This position of the ball is the highest point now. Okay, now from this height only we are dropping this ball. So this is suppose h height. The height is h, and this position is the position A of the ball. Okay, now the ball will fall freely. Anyway, after some time the ball will come at this point, and again after some time the ball will just hit the ground. Okay, so that means the ball will just reach the ground. So this position somewhere in the middle, we denote that position by B, and when it has just hit the ground, let that position for the ball be C. So we are observing the ball under three positions A, B and C. चलो अब पोजीशन A में जब बॉल है तो वो कितने हाइट पर है जमीन से? h हाइट पर है ना? तो उसमें अभी कौन सा एनर्जी प्रेजेंट है? पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द ग्राउंड, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है. Okay, so we are taking U. Now potential energy, that is U, is given by the formula mgh, where m is the mass of the ball, g is the acceleration due to gravity, and h is the height above the ground. So उसमें अभी बस potential energy है mgh, और kinetic energy इस वक्त कितना है? 0, क्योंकि बॉल अभी भी रेस्ट में है, उसको गिराया नहीं गया है, वो पॉइंट A पर है, पोजीशन A पर है, और अभी भी वो रेस्ट में है, तो वो उसका kinetic energy 0 रहेगा. Now while it is falling down, जब वो गिर रहा है, suppose at this point, when it is at point B, तो उस समय हम देखेंगे the total energy of the ball will be the sum of potential energy and kinetic energy that will be present at point B. Point B पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. क्यों? क्योंकि उस समय भी वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर होगा, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि काइनेटिक बॉल मोशन में है. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल निकल जाएगा, and the total energy at point B will be equal to mgh. Okay, so mgh that we have derived. कैसे mgh आया? That we have derived in the previous lecture, so I'm not going into the derivation. Now at point C पर अगर हम बात करें, जब body has just touched the ground, ground को just touch किया है, तो इसमें potential energy कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी वो ground से किसी भी height पे नहीं है. So if the height of the ball is 0, the potential energy will be 0, and kinetic energy in this case will be maximum, क्योंकि उसने अभी just ground को touch किया है, अभी भी rest में आया नहीं है, लेकिन just ground को touch किया है, so it will have the maximum kinetic energy, and we have also derived that the value is mgh. So इधर भी अगर हम sum of potential energy and kinetic energy करेंगे तो दोनों का sum कितना हो जाएगा? 0 plus mgh will give me mgh. So point A पर भी अगर हम total energy को निकालेंगे, we will get mgh plus 0 is mgh only. That means at any point, चाहे वो highest point हो, चाहे at a point in the somewhere in the middle हो, या at the point just when it has hit the ground, total energy will always be mgh. But what we have observed over here, कि when it is at the highest point, the value of potential energy is mgh, kinetic energy is 0. And when it has just touched the ground, the value of potential energy is 0 and kinetic energy is mgh. That means we can say that this entire potential energy जो at the highest point में था, mgh, the highest point में जो entire potential energy था, that got converted into kinetic energy when it has just touched the ground. mgh जो potential energy था at the highest point, it has converted into kinetic energy. Entirely it has converted into kinetic energy when it has just touched the ground. This we can say. Okay, now we have the graph. We have plotted this graph. In the x-axis we have kept height above the ground. x-axis में हमने height को plot किया है, और y-axis पे हमने energy को plot किया है, total energy of the body. So we know that the total energy of the body, okay, at any point is mgh. Now here in this graph we will plot both the kinetic energy के लिए separate graph and potential energy के लिए separate graph.
So height of the ground जब zero है, so let us first plot for kinetic energy. Let us first plot for kinetic energy. Height of the height above the ground अगर zero होगा तो kinetic energy हमने क्या पढ़ा? Kinetic energy will be mgh, maximum होगा. Height above the ground zero मतलब कौन सा केस है? केस C. पॉइंट C पे जब बॉल है तो हाइट कितना है? जीरो. और उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgh. और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो. सो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं mgh है. ओके. एंड ग्रेजुअली व्हेन द हाइट इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. ऐसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ यू सी द काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. The line, this line is the graph for kinetic energy. So as the height is increasing, the kinetic energy is decreasing, and at maximum height h, the kinetic energy becomes zero. The value of kinetic energy becomes zero. So this is the graph for kinetic energy. Okay. So जैसे जैसे height बढ़ रहा है for a freely falling body, the kinetic energy is decreasing, and at the highest height, the kinetic energy becomes zero. This we have observed here also, that at the highest point, that means at point A, the kinetic energy is zero. Now this graph is the graph for potential energy. तो potential energy को देखते हैं क्या हो रहा है. potential energy जब height zero है तो potential energy zero है. okay, that means at point C potential energy is zero. लेकिन जैसे जैसे height बढ़ा the potential energy increases and at the highest height the potential energy is maximum mgh. तो यहाँ पे हाइट जब जीरो है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी जीरो. और जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड एट हाईएस्ट हाइट द पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh हो जाता है. सो दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव प्लॉटेड फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ओके. नाउ दिस पॉइंट हियर पॉइंट B डिनोट्स द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी. यहाँ पे जैसे दिस B point was denoting the mid point, exactly the middle point of the journey, A और C के exactly mid point. तो वहाँ पर अगर हम देखें तो what will be the value of this thing, potential energy? It will be half mgh. And what will be the value of kinetic energy? That also will be half mgh. So both potential energy and kinetic energy दोनों का value half mgh और half mgh होगा at the height h/2, मतलब हाफ ऑफ द हाइट, हाफ ऑफ द जर्नी. और हाफ mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है और फिर हाफ mgh जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मुझे mgh मिल जाएगा. दैट मीन्स आवर द डेरिवेशन दैट वी हैव डन इज सेटिस्फाइड हियर ऑल्सो बाय दिस ग्राफ ऑल्सो, दैट टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी ऑलवेज इक्वल टू mgh. ठीक है. तो ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. नाउ द सेम थिंग वी विल डू इन द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ओके. हमने देख लिया फ्रीली फॉली बॉडी के केस में किस तरह से काइनेटिक एनर्जी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सेम चीज़ है हम इस पेंडुलम में ऑब्जर्व करेंगे. बट यहाँ पर एक एजम्पशन कर लेंगे कि बॉडी, ये जो बॉब है ये जब मीन पोजीशन में है तब दैट मीन पोजीशन वी आर कंसिडरिंग कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि उसका हाइट अबव द ग्राउंड जीरो है. ऑब्वियसली हाइट अबव द ग्राउंड जीरो उस समय भी नहीं है जब वो मीन पोजीशन में है. उस समय भी उसका हाइट अबव द ग्राउंड जीरो नहीं है. कुछ ना कुछ हाइट तो ज़रूर होता है ज़मीन से, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन is zero because the height above the ground at mean position let us consider to be zero, means वो ज़मीन को टच करके है. this line, this horizontal line suppose is the surface, is the ज़मीन over here, okay, is the ground over here. तो ग्राउंड को जस्ट वो टच कर रहा है जब वो अपना मीन पोजीशन में है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. तो ग्राउंड को अगर वो टच किया हुआ है मीन पोजीशन में तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डेफिनेटली जीरो होगा बिकॉज हाइट अबव द ग्राउंड जीरो है. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा mgh होगा क्योंकि अभी वो मूव कर रहा है. उसको हाइट अबव द ग्राउंड एक्सट्रीम पोजीशन में जब वो है देन इट इज एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ h एट द एक्सट्रीम पोजीशन. तो उस केस में उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि अभी कुछ ना कुछ हाइट उसको है. कितना हाइट है? h हाइट है. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh एंड एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो क्योंकि बॉल को, इस बॉब को हम पॉइंट B से रिलीज करेंगे तो उस समय वो रेस्ट में है और काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. और जैसे मैंने रिलीज किया देन ग्रेजुअली दिस बॉब स्टार्ट्स मूविंग एंड इट स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम B टू A. अब जैसे वो A पर आता है हाइट उसका जीरो हो जाता है, हाइट अबव द ग्राउंड जीरो हो जाता है. सो द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो and the potential energy which was initially mgh got converted into kinetic energy. The same thing happens when it goes
हाई अप ऑन द अदर एक्सट्रीम एंड। जब वो अदर एक्सट्रीम एंड सी पे जाता है तब उसका हाइट अबव द ग्राउंड कितना हो जाता है, फिर से h, तो उसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी फिर वहाँ कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बॉब क्योंकि बॉब वहाँ पे फिर रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, और रेस्ट में जैसे ही आता है पॉइंट सी में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है। मीन्स अगेन दिस एंटायर काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल, ओके, व्हाट इज हैपनिंग here, the entire potential energy getting converted into kinetic energy, and again the kinetic energy getting converted into potential energy. Again this potential energy will get converted into kinetic energy, this kinetic energy will again get converted into potential energy, and this cycle keeps on repeating, in this simple pendulum case. So this pendulum वाला जो क्वेश्चन है, जो ड्राइंग है, जो डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये भी एग्जाम में एक आध बार पूछा जा चुका है ICSE में, so please practice this question also. Main thing is conceptualization. This is very important. Now here's a question in front of you that will make it more clear. A simple pendulum while oscillating, एक simple pendulum है वो oscillate कर रहा है, rises to a maximum vertical height of 5 centimeter. तो उसका maximum height कितना है, 5 centimeter, मतलब कि h का वैल्यू दिया हुआ है 5 centimeter from its rest position, मतलब अपने rest position से वो 5 centimeter का vertical height में उठता है। That means if you see this diagram, this h value is given, h is 5 centimeter, that is given in the question. When it reaches to its extreme position on one side, ठीक है, if the mass of the bob is 500 grams, so mass of the bob भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट। चलो ये तो बहुत इजी है, मैं बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट अगर मुझे निकालना है तो दैट वैल्यू विल बी mgh। ओके, सो mgh के वैल्यू मुझे निकालना है, दैट इज द व्हाट विल बी द वैल्यू, बस वैल्यूज पुट कर देंगे। m का वैल्यू 0.5, एक्चुअली 500 ग्राम्स दिया हुआ है, मैंने उसको kg में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एंड h का वैल्यू जो 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.05 मीटर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री वी विल गेट 0.25 जूल्स। ओके, बी केयरफुल दैट द यूनिट ऑफ energy that we are finding out is joules, so we will use the energy correct unit, we will use the correct unit for energy, 0.25 joules आ गया। now second part क्या है, calculate या find the velocity of the bob at its mean position। जब वो अपने mean position में है, mean position मतलब ये central position, जब वो अपने mean position में है तब तो उसमें motion है, that means उसमें kinetic energy है और उसमें velocity भी है क्योंकि वो move कर रहा है, तो वहाँ पे उसका velocity मुझे निकालना है। तो इसमें एक चीज़ देखो, मीन पोजीशन में उसका वेलोसिटी कितना होगा, मीन पोजीशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। जस्ट लुक एट दिस थिंग, द सेंट्रल पॉइंट ए को देखो, दैट इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, mgh लिखा हुआ है ना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसका मतलब हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड। ओके, अब हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, अब बहुत आसान है, जस्ट इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। अब इससे हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड वी विल गेट v इक्वल्स टू √2gh, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा ना, m कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट v इक्वल्स टू √2gh। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि g और h का वैल्यू पता है, एंड वी विल गेट √1, दैट इज 1। सो 1 मीटर per second is the velocity of the body when it is at the mean position. Okay, now यहाँ पे बोल दिया है what is the assumption that you have made in your calculation। क्या assumption हमने किया, हमने ये assume किया कि कोई भी energy, कुछ भी amount of energy एयर फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हुआ। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली ये पॉसिबल है कि एंटायर पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी? दिस इज द आइडियल केस, दिस इज द आइडियल केस, ये वैक्यूम में ऐसा होगा। लेकिन अगर साइड में एयर है, एयर का फ्रिक्शन है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो बट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द आइडियल केस एंड वी आर अज्यूमिंग दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन due to the air. We are assuming that, and we are assuming that this is the ideal case where entire potential energy at the extreme position is getting converted into kinetic energy at the mean position. तो यही assumption हमने यहाँ किया, so that we have written there is no energy loss due to air friction. Okay, एक और question करते हैं and then concept को और ज़्यादा clear करते हैं।
अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है 20 ग्राम, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से उसे गिराया जा रहा है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स, ग्राउंड में हिट होता है करता है वो बॉल, और फिर से वो रिबाउंड करता है, एंड इट गोज अप टू हाइट ऑफ 8 मीटर, रिबाउंड करके अब 8 मीटर का हाइट तक वो ऊपर जाता है. वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. दैट मीन्स ग्राउंड को जस्ट जैसे उसने स्ट्राइक किया, दैट मोमेंट उसमें कितना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी था. तो देखो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इफ वी सी दिस डायग्राम, ग्राउंड को जस्ट जब उसने टच किया, दैट मीन्स विच पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. डायग्राम बहुत गंदा लग रहा है, बट यू ट्राई टू फिगर आउट विच पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, द पॉइंट व्हेन इट हैज जस्ट हिट द ग्राउंड. उस समय उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh है, हमने अभी यहाँ पे लिखा है ना, और डेराइव भी हमने किया था लास्ट वीडियो में. तो काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है व्हेन इट हैज जस्ट हिट द ग्राउंड, तो दैट मीन्स mgh का वैल्यू निकालना है मुझे. ओके, सो यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ mgh विच इज एक्चुअली द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल. तो mgh का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे. 0.02 kg, हमने ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया, तो 20 ग्राम को kg में कन्वर्ट किया, तो 0.02 kg इंटू 10 इंटू 10. ओके, ये वाला 10 जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वाला 10 जो है वो हाइट है. इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 2 जूल्स. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज जस्ट हिट द ग्राउंड, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वी कैन से लाइक दैट. ओके, नाउ कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो अब क्या हुआ, जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ऑब्वियसली अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा और बॉल रेस्ट में आने लगेगा. लेकिन फिर से ग्राउंड उसको कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ग्राउंड विल ऑल्सो अप्लाई सम फोर्स, और फिर बॉल ऊपर की तरफ भागेगा, उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. सो दिस थिंग हैपेंस इन अ वेरी 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 शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो उस तरह से मुझे पता नहीं चलता ये टाइम गैप, लेकिन ये होता है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो मुझे निकालना है. So that will be the potential energy of the ball at the highest point after rebound. क्यों ये हिट करने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बॉल कुछ हाइट तक ऊपर जाता है. तो यहाँ पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट सेकेंड बार जब वो ऊपर जा रहा है, मतलब हिट करने के बाद रिबाउंड करके ऊपर जा रहा है, तब उसमें कितना हाइट था, उसको h डैश ले रहे हैं. तो h डैश कितना हो रहा है, 8 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो ये जो मैक्सिमम हाइट में उसका जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट मच ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी at the point after striking the ground. Yes or no? Because this entire kinetic energy after striking the ground will convert into the potential energy when it will take the rebound. तो rebound के केस में उसका जो हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट, वो 8 मीटर जाता है रिबाउंड करके. तो उस हाइट में उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh डैश होगा. तो mgh डैश का वैल्यू कितना है, निकाल लेंगे. 0.02 इंटू 10 इंटू 8. हमने 8 क्यों लिया, क्योंकि हमने रिबाउंड का हाइट लिया. तो उसका वैल्यू आ गया 1.6 जूल्स. एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल at the height of 8 meter after rebound, and this is actually the kinetic energy of the ball after striking the ground. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है. कितना लॉस हुआ है, 2 जूल्स था पहले, और अभी हो गया है 1.6 जूल्स. 2 जूल्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड था, और 1.6 जूल्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हो गया. ये बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड दोनों बिल्कुल लगेगा कि सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम है, लेकिन बहुत लेस अमाउंट ऑफ टाइम डिफरेंस दोनों में है. ग्राउंड को उसने जैसे ही टच किया उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं बिफोर टचिंग द ग्राउंड, और जस्ट इन द नेक्स्ट इंस्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. सो दिस टाइम गैप इज वेरी वेरी लेस. वी हैव टू जस्ट इमेजिन इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट इन अ very different perspective. Okay, so if we subtract these two values of kinetic energy, 2 joules minus 1.6 joules, so it is 0.4 joules, that is the loss of kinetic energy. यहाँ पे पूछा है कि what happens to this loss of kinetic energy. ये कहाँ से loss of kinetic energy हुआ, और ये kinetic energy loss energy तो कभी loss होता नहीं है, इसका मतलब definitely वो किसी और form of energy में convert हो गया होगा. तो कहाँ पे convert हो गया, तो यहाँ पे है it appears in the form of heat energy and sound energies when the ball strikes the ground. बॉल स्ट्राइक करने के बाद कुछ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, ठक से जमीन पे हिट किया तो एक आवाज प्रोड्यूस होता है. तो वो साउंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ, वो एक्चुअली वो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ था, दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
got converted into the sound energy, and some amount of heat can also be produced. जमीन में जब ball hit किया तो कुछ amount of heat energy due to friction भी produce हुआ होगा, very negligible amount of heat energy obviously, but that then also it is produced. So that amount of heat energy and sound energy is the result, is actually it is due to the loss of kinetic energy, this loss 1.6 joules loss of kinetic energy. So see, these questions are not very easy. It involves a lot of conceptualization. You have to imagine a lot of things over here, and everything is clear only when you listen to these lectures very attentively and go through the book quite minutely. Then it will be very interesting, it will be quite comprehensible. Okay, so मैं request करूँगा कि प्रीवियस वीडियोस को एक बार और देख लो, प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 को एक बार और देखो, एंड देखने के बाद कंटिन्यूटी में लेक्चर 6 को एक बार फिर से देखो. तो लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 को एक कंटिन्यूटी में देखोगे तुम्हारा तब क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, बिकॉज आई एडमिट दैट दिस लेक्चर इज लिटिल डिफिकल्ट, दिस टॉपिक इज लिटिल डिफिकल्ट. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay safe and stay at home.